اب لاہور سے خبر ہے کہ کسٹمز کا نولکھا میں اسمگل شدہ سامان کے خلاف آپریشن تاجروں اور کسٹمز عملے میں جھڑپ ہوئی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ کسٹمز عملے کی جانب سے ٹائروں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ 10 تاجروں کو روڈ بلاک کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ تفصیل دی ہے اور اس بارے مزید ان کے ذرائع کیا کہتے ہیں بتائیں گے رانا محمد علی۔ جی علی۔ لاہور کے اندر ابھی کچھ دیر قبل کا واقعہ ہے کہ کسٹم کو اطلاع ملی تھی کہ اسمگل شدہ جو ٹائر ہیں وہ لاہور میں بڑی کھیپ آئی ہے، جس پر انہوں نے رات کے دکانوں کے تالے کاٹ کر مال نکالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں روالی سلما جو یہاں پہ ایک پوری مارکیٹ ہے ٹائروں کی، وہاں کے جو تاجر ہیں وہ موقع پہ پہنچ گئے۔ کسٹم حکام اور ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس کے بعد پولیس آ گئی، شیلنگ ہوئی، کافی دیر تک یہ پتھراؤ بھی جاری رہا اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسٹم کا عملہ جو ہے وہ ان کا مال پکڑ کے یہاں سے نہ لے جائے۔ ابھی پولیس موجود ہے، انہوں نے سڑک بلاک کر دی، پولیس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ کچھ دکاندار اریسٹ کیے گئے ہیں جن کی تعداد 10 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ پولیس یہ چاہتی ہے کہ کسٹم حکام ایپلیکیشن دیں جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاجروں کے خلاف۔ دوسری جانب جو تاجر ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کسٹم حکام کو معطل کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی ملی بھگت کر کے مال جو ہے وہ لاہور لانے کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد جب دکانوں پہ پہنچ جاتا ہے تو پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، رشوت کے عوض جو ہے وہ مال جو ہے بیچنے کی اجازت دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آج پیسوں کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر یہ آپریشن کیا گیا اور اسی حوالے سے ابھی تک احتجاج جاری ہے اور انہوں نے نولکھا جو مین اسٹیشن روڈ ہے وہ بلاک کر کے احتجاج کر رہے ہیں اور کسٹم حکام کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ جی احتجاج کیا جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں والی میں دہشت گردوں نے تھانہ مکڑوال پر حملہ کیا، جسے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ حملے میں تمام اہلکار محفوظ رہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دلیر جوانوں کو شاباش بھی دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب پولیس کے یہ جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس نے میاں والی حملے کے پیش نظر خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ 4 رکنی کمیٹی میں ایڈیشنل آئی جیز ٹریننگ، اسپیشل برانچ آپریشنز اور ڈی آئی جی آئی ٹی شامل ہیں۔ کمیٹی آر پی او سرگودھا کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے تعاقب کے لیے سرچ اور کامبنگ آپریشنز پلان کرے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پیچھے آئے دور میں مذاکرات کی حکمت عملی کے غلط نتائج نکلے۔ ایسے لوگ بھی چھوڑ دیے گئے جنہیں سزائے موت ہوئی تھی، ان کی غلطیوں کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پالیسی کے اثر نو تشکیل کی ضرورت ہے۔ پشاور دھماکے میں 97 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ وہ قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دے رہے تھے۔ یہ اجتماعی غلطی، قومی غلطی یہ ہوئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی مجاہدین تیار کرنے کی۔ حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ اس معزز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پالیسی دے؟ پالیسی اس معزز پارلیمنٹ نے دینی ہے۔ پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں اس میں پھر جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کیا گیا، ان کا رائز جو ہے وہ 2021 میں جو ہے وہ شروع ہوا۔ یہ وے فارورڈ کے طور پہ کی گئی تھی کہ جی ان لوگوں کو انگیج کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے یہ بات کی گئی ہو، لیکن یہ پالیسی، یہ فیصلہ، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جن لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی تھی۔ نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم بھی اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں، عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس ہاؤس کو اعتماد میں لے۔ آئی جی کے پی کے ہے، اس نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ یہ جو فیملیز یہاں پہ یا سویلین جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اس خودکش کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا۔ خراسانی گروپ کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو اس نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس میں 3 سویلین ہیں اور 97 جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پولیس کے جو ہے وہ آفیسرز ہیں۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایک ہی خودکش تھا۔ خودکش وہاں پہ کس طرح سے پہنچا، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے کافی قریب ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے ہمیں سپر پاور کا اعلی کار بننے کا شوق پرانا ہے۔ 4.5 لاکھ افغان پاکستان آئے اور واپس نہیں گئے۔ ہم نہیں جانتے ان میں کون دہشت گرد ہے۔
امریکہ کے کہنے پر ان کے مفاد کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دے رہے تھے۔ ہم نے اپنا ملک جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمیں سپر پاورز کا اعلیٰ کار بننے کا شوق بڑا پرانا ہے، اور کیا وہ طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا۔ اس جنگ میں پاکستان جو ہے اکیلا ہے۔ پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے بیسس بنائے ہوئے ہیں یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو اس میں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ بھی ہماری لائبلٹی بن جاتی ہے۔ 4.5 لاکھ افغانی جو ہے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ویلڈ ڈاکومنٹس پہ پاکستان آیا اور واپس نہیں گیا۔ میں آپ کو آفیشیل فگر بتا رہا ہوں، کون ہمیں دہشت گرد ہے کون نہیں دہشت گرد ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں۔ ان کی 5 ملین آبادی جو ہے افغانستان کی، اس کی روزی جو ہے پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ ان کے کاروبار ہے یہاں پہ، ٹرانسپورٹ کا سارا کاروبار ان کے پاس ہے۔ سرحد پار سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقتدر ہیں؟ ہم تو ایک رہن رکھی ہوئی، گروی رکھی ہوئی قوم ہے جس کے اپنے ہاتھ میں اپنا مستقبل نہیں ہے۔ جتنا جو تباہی کا جو ہے سفر جو ہے یہ ہم نے خود طے کیا ہے۔ امریکہ کے حواری ہم نہ بنے ہوتے، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، میں ان کا حامی ہوں، لیکن ان کے کہنے کے اوپر ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیے۔ ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد گھناؤنے ہتھ کنڈوں سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ دہشت گرد گھناؤنے ہتھ کنڈوں سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے۔ عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد گروپ کو نہیں پنپنے دیا جائے گا۔ ہم دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے آپریشنز جاری رہیں گے۔ سابق 255ویں کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت ہوئی۔ شرکاء کو درپیش خطرات، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے جاری آپریشنز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے پشاور پولیس لائن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متنزل نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کامیابی کے لیے عزم کو تقویت ملتی ہے۔ کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پنپنے نہیں دیں گے۔ تمام کمانڈرز انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کوششیں جاری رکھیں۔ پولیس لائنز دھماکے نے جہاں کئی خاندانوں کے چشم و چراغ بجھا دیے، وہیں 10 دن پہلے شادی کے بندھن میں بندھنے والے کانسٹیبل مراد خان بھی شہداء میں شامل ہیں۔ پولیس لائن دھماکے میں پشاور کے علاقہ ابراہیم آباد سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل مراد خان بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مراد 10 سال سے پولیس میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، 4 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ 10 دن قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ 10 دن پہلے 2 بھائی ہے اس کا شادی ہوا ہے، مراد کا اور سلمان کا جی۔ 10 دن ہوئی ہے اس کا شادی کا۔ موبائل دیکھا دیکھا ہے تو ہماری کلرک کو بھائیوں نے اس سے پتہ چلا کہ پولیس میں دھماکہ ہوا ہے۔ مراد خان خوش اخلاق اور نیک سیرت بھی تھا۔ اس کی جو خوبیاں تھی وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بڑوں کا عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اس کی زندگی کی روٹین تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مراد خان کی نماز جنازہ پشاور ابراہیم آباد میں ادا کر دی گئی اور آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس لائن دھماکے نے صوبے کے 11 سے زائد اضلاع میں کئی گھروں میں صف ماتم بچھا دی۔ کیمرہ مین نعیم بابر کے ساتھ علی شنواری، دنیا نیوز، پشاور۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ آج
8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। शहबाज शरीफ से नून लीग और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत शेड्यूल इजलास में पावर डिवीज़न हुकाम तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। सरमायाकारी बोर्ड के रेगुलेटरी ज़वाबित और गाइडलाइंस भी पेश की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से नून लीग और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत इरसाल कर दिया है। तर्जमान गवर्नर हाउस के एलामिये के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली के इलेक्शन कमीशन को खत में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की तारीख दी है और इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का कहा गया है। तर्जमान गवर्नर हाउस ने दुनिया न्यूज़ के इस्तिफसार पर तारीख बताने से लाइल्मी का इजहार किया। दूसरी तरफ इंतखाबात की तारीख के हवाले से JUI की मरकजी क़यादत भी लाइल्म है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग क़ाफ की सदारत से हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ECP ने करार दिया है कि काफली की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इक़दाम की कोई हैसियत नहीं। चौधरी शुजात ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला कलअदम, चौधरी शुजात पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सदारत से हटाए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए कमीशन ने पार्टी वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिन्होंने अपनी दरख्वास्त में पार्टी सदारत से हटाने के वर्किंग कमेटी के फैसले को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तिनाह पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की जुलाई 2022 की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ के मशावरती इजलास में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने वाले कामिल अली आगा कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है। सदारत की मुद्दत मुकम्मल होने पर 26 जनवरी को नए इंतखाबात कराए। नई लीडरशिप के इंतखाब में चौधरी वजात पार्टी के सदर मुंतखब हुए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला चौधरी शुजात हुसैन की उस दरख्वास्त पर है जो उन्होंने जुलाई 2022 में दायर की थी। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अलग से दरख्वास्त देना होगी। गुज़श्ता साल के बारे में रेफरेंस था जब चौधरी शुजात साहब को उन्होंने पार्टी की सरबराही से हटाने की एक करारदाद पेश की थी। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना लिया, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले अब चौधरी वजात हुसैन साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनको सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग PU का बनाया गया और कामिल अली आगा को सेक्रेटरी जनरल और वर्किंग कमेटी का भी उन्होंने दावा किया है कि वर्किंग कमेटी भी मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने एक इलेक्शन करवाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब इसका हाल तो यही होगा कि जो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज करते हुए अज़-सर-ए-नौ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग के मशावरती इजलास में चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजात हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर करने का फैसला हुआ। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने चौधरी शुजात हुसैन को फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनसे काफ लीग छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई है। एक बयान में मरीम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पैगाम है कि डस्का की धुंध में नहीं, फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे। जलाओ, घेराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो की फस्तायत मुल्क पर मुसल्लत नहीं। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है सच जीत गया और झूठ फस्तायत हार गई। मुस्लिम लीग काफ की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के, कारकुनों और अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों से पाक करेंगे। अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री अशिया की कीमतों के तयन से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया है कि हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत अजहुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं रखती। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184 की झैली शिक 3 के तहत अजहुद नोटिस का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट के सामने सिर्फ अशिया की कीमतों का मामला ज़ेरे समाअत था। हाई कोर्ट ने 1 से ज़ायद मरतबा अजहुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जबकि अशिया की दरामद और बरामद का इख्तियार अदालत का नहीं इंतजामिया का है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ अजहुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया बल्कि इंतजामी दायरा इख्तियार में भी दखल अंदाजी की। पेशावर हाई कोर्ट ने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री अशिया की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया था। अदालत आलिया ने हुकूमती एहलकारों को मयारी दूध और दीगर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मार्केटों के दौरे करने का हुक्म भी दिया था। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत का मामला एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने फरीकैन से आज दलाइल तलब कर लिए। कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए वक्त की इस्तदा। फवाद चौधरी की जमानत का मामला फिर लटक गया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद फैजान हैदर गिलानी ने की। फवाद चौधरी के वकला बाबर अवान, अली बुखारी, फैसल चौधरी और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूशन से कोई पेश ना हुआ। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, आजम स्वाति, शहजाद वसीम भी मौजूद थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने समाअत जुमरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा, हमें दरख्वास्त जमानत की कापियां दी जाए, इन्हें पढ़कर दलाइल देना चाहता हूं। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल दे दें। ताहम अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल एक साथ सुनेंगे। वकील बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील केस में पहले भी दलाइल दे चुके, तैयारी क्या करनी है। बोले 4 दिन कबल जमानत की दरख्वास्त दायर की। इस हुकूमत की प्लेटलेट्स किसी और के हुक्म पर चलती हैं। अगर आज 2 बजे समाअत में उन्होंने रिकॉर्ड पेश ना किया तो 228 की दरख्वास्त देंगे। एक SHO अगर उनके कहने पे अदालत में हाजिर नहीं होता है, जिसको आप कौन सी स्टेट कहेंगे? बनाना रिपब्लिक? नो, ये पुलिस राज है इस वक्त, और उसका सबब है पुलिस के पीछे ये सब्जाजार के मुकदमे से शुरू करके मॉडल टाउन के मुकदमे तक पुलिस के पीछे छुप के ये इक़्तिदार में आते हैं और पुलिस के पीछे छुप के ये मजालिम करते हैं, और 25 मई उसका गवाह है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था कि जमानत पर नहीं, जिस्मानी रिमांड पर दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात के मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को पेश होने के लिए आज शाम 4 बजे तक का वक्त दे दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि जो भी कहा इमरान खान के बयान की बुनियाद पर कहा था। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेख रशीद इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे, इन्हें थाना पारा में पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। आज शाम 4 बजे तक पेश हों। साबिक़ वज़ीर दाखिला एक बिलवास्ता पैगाम आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात से मुकर गए। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के कत्ल से मुतालिक किसी साजिश का इल्म नहीं, उन्होंने जो भी कहा था PTI चेयरमैन के बयान की बुनियाद पर ही कहा था। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मॉनेटरी फंड हुकाम से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुआशी इस्लाहात, बजट खसारे, रुपए की कदर और दीगर इस्लाहात से आगाह किया। IMF मिशन हेड ने मुकर्रर वक्त में प्रोग्राम की तकमील की उम्मीद का इजहार किया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। IMF की जानिब से $1 अरब के कर्ज की किस्त के लिए 9वें जायजा इजलास का इस्लामाबाद में आगाज हो गया। नाथन पोर्टर की क़यादत में IMF वफ्द ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुआशी इस्लाहात और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने मुआशी इस्लाहात, बजट खसारे, रुपए की कदर और तवानाई से मुतल्लिक इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। IMF मिशन सरबराह नाथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से IMF की शराइत पूरा करने के लिए पुरउम्मीद हैं। IMF पाकिस्तान के साथ मालियाती इस्लाहात पर काम जारी रखेगा। रवा माली साल के दौरान मुआशी आशारियों में तनज़ुली का रुझान देखा गया। जुलाई से नवंबर बजट खसारा 1169 अरब तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। महंगाई की औसत शरह 25% रिकॉर्ड की गई है।
बजट खसारा 1169 अरब रुपए तक पहुंच गया। तरसीलात ज़र में 11%, बरामदात में 7%। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर। ज़र मुबादला में कमी का चैलेंज भी संगीन। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, इक्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी, गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल के पहले 5 माह के दौरान बजट खसारा 1169 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जुलाई से दिसंबर तक महंगाई की औसत शरह 25% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 9.8% थी। तरक्याती अखराजात सिर्फ 139 अरब रुपए रहे और FBR टैक्स आमदन 3429 अरब रुपए रही। वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स आमदनी 822 अरब रुपए, ज़रई कर्जे 842 अरब रुपए रहे। तरसीलात ज़र में 11%, बरामदात में 7%, दरामदात में 18% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। गुज़श्ता एक साल में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर से कम होकर पौने 9 अरब डॉलर रह गए। 3 रोज के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में पौने 2 रुपए कमी हुई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में 801 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद इंटरबैंक में इसकी कीमत को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे कमी के बाद 267 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत बरकरार रहने के बाइस कीमत 4 रुपए इजाफे से 275 रुपए तक पहुँच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। हसीस की कम मालियत को देखते हुए सरमायाकारों ने शेयर्स खरीदना शुरू किए तो इख्तिताम पर मार्केट 801 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक IMF वफ्द के इस्लामाबाद आने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए नए कर्ज की मंजूरी हो सकती है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेजी और रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तवानाई बचत मंसूबे के तहत मुल्क भर में पंखों की तब्दीली के प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर में 3 करोड़ सार्फिन का हदफ मुकर्रर किया गया है। तब्दीली के इकदाम से 5000 मेगावाट बिजली बचेगी। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां, पंखों की तब्दीली की मंसूबाबंदी कर ली गई। 3 करोड़ सार्फिन के पंखे होंगे तब्दील। मुल्क भर में पंखों की तब्दीली 2 मराहिल में होगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पंखे तकसीम किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में बिजली के तमाम सार्फिन के पंखे तब्दील किए जाएंगे। नए पंखे यूटिलिटी स्टोर्स और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर से फराहम किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक बिजली की बचत के लिए एनर्जी एफिशिएंट फैन की कीमत 6,669 रुपए मुकर्रर की गई है, जो 17% शरह सूद पर सार्फिन को दिए जाएंगे। सार्फिन से रकम किस्तों में वसूल की जाएगी। पंखे की किस्त बिजली के बिलों में शामिल की जाएगी। एक पंखे पर 969 रुपए सूद अदा करना होगा, जबकि पुराना पंखा 1,800 रुपए में एडजस्ट किया जाएगा। एक पंखा 4,666 रुपए की बिजली बचाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की करके 140वें नंबर पर पहुंच गया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक में बदउनवानी की शरह इससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के दावे, नतीजा 0। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया। 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। ताहम गुज़श्ता 10 साल में पहली बार पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कम होकर 27 दर्जे हो गया। परसेप्शन इंडेक्स में तनज़ली के बाद 180 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 140वां है। साल 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। साल 2018 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 33 और साल 2019 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 32 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम रहे और 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डेनमार्क पहले नंबर पर है, यानी डेनमार्क में करप्शन कम है, जबकि भारत का नंबर 40वां और बांग्लादेश 147वां है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई है। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल बरसे।
मालम जबा में 6, स्तोर में 3 और चित्राल में 1 इंच बर्फ पड़ी। लेह सरतरीन मकाम रहा जहां पारा -8 दर्जे तक गिर गया। कालाम पारा चिनार में दर्जा हरारत -7 कल्लात और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।